إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، ہر طرح کی بزرگی بڑائی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے اور حقدار ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، اس سے پہلے خطبہ جمعہ جو آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ قسط وار جو 2 خطبہ ہمارا ہوا تھا، وہ تھا اقامت دین اور منہج-ے-سلف، اس کے تعلق سے خطبات ہوئے تھے۔ آج کا خطبہ بھی انہی سے تعلق رکھنے والا ہے کہ عظمت صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور منہج-ے-سلف، اس کے تعلق سے آج آپ کے سامنے ہم کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہت سارے وہ لوگ جو حقیقت میں دین کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری حفاظت کے ساتھ ان صحابہ کے ذریعے سے پہنچایا، آج جن لوگوں نے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، دنیاوی مفاد کے خاطر، دنیاوی شہرت کے خاطر، دنیاوی فائدے کے خاطر، یہ صحابہ کرام کی جماعت جو اس امت کی سب سے بہترین جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت جن صحابی کے بارے میں اللہ نے آسمان سے رضی اللہ عنہ کی گواہی دی ہے، ایسے صحابہ جو اس امت کی فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتے ہیں، بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس فاؤنڈیشن کو ہلا دیا ہے، ہلا دینے والی باتیں کہی ہیں، ان صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان صحابہ کے تعلق سے ایسے گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے ہیں جو کبھی بھی ایک بندہ مومن جسے کبھی سن کر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس حقیقت سے اور ایسے لٹیروں سے جو ایمان کے لوٹنے والے ہیں اور ایمان کو بیچنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی حقیقت سے آگاہی بہت ضروری ہے، ازحد ضروری ہے۔ اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے اس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب
रब्बुल आलमीन सही मानों में दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा किराम की इज़्ज़त व एहतराम करने का जो कुरान और अहादीस ने हमें हुक्म दिया है उस पर अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमा और उनकी शान में हर तरह की गुस्ताखी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, आमीन। मेरे भाइयों, मैं अपनी बात की शुरुआत करने के लिए सूरतुल मुजादिला की मैंने सबसे आखिरी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। आयत का तर्जमा यह है, आयत के तर्जमे से आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला ने सहाबा की शान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसी कैसी बातें कही हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर यानी क़यामत के दिन पर ईमान रखने वालों को आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वालों से, अल्लाह से दुश्मनी करने वालों से मोहब्बत करते हुए नहीं पाएंगे। यानी सहाबा किराम की जमात, जो लोग अल्लाह के दुश्मन हैं, जो लोग नबी के दुश्मन हैं, जो लोग दीन के दुश्मन हैं, ऐसे लोगों से कभी भी उनको मोहब्बत करते हुए नहीं देखेंगे। गर्चे के इस मामले में उनके बाप ही क्यों ना हो, या उनके बेटे, या उनके भाई, या उनके ख़ानदान और कबीले, या उनके अजीज़ व अकारिब ही क्यों ना हो, उन तमाम की वो मुखालिफत करने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को लिख दिया है। यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को रासिख कर दिया है। यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को मजबूत कर दिया है। ये सहाबा किराम की जमात है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जिनकी ताईद अपनी रूह से, यानी जिनकी ताईद और नुसरत अल्लाह की तरफ से होती है, और उन्हें उन जन्नतों में दाखिल किया जाएगा जिसके नीचे से नहरें जारी हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये हमेशा उसके अंदर रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी है, अल्लाह से ये खुश हैं, और ये अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर है। लोगों आगाह रहो, लोगों सुनो इस बात को कि बेशक अल्लाह का गिरोह, अल्लाह का जमात, अल्लाह की लश्कर यही हमेशा कामयाब होने वाली है। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम की 6 सिफ़ात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। 6 सिफत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। 3 जो उनके कैरेक्टर और उनके किरदार से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं, और 3 बातें वो हैं जो अल्लाह की तरफ से उनको इनाम दिया गया है, अल्लाह की तरफ से उनको गिफ्ट किया गया है। उन 3 बातों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। सबसे पहली बात, सहाबी किसको कहते हैं, हम इस बात की वजाहत करेंगे। सहाबी उस शख्स को कहते हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत, ईमान की हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नसीब किया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए, आपके हाथ पर बैत किए, और बकिया ज़िंदगी भी उन्होंने हालत ईमान में ही गुजारा। ऐसा नहीं कि वो मुर्तद हो गए या फिर दीन से फिर गए, वो सहाबी नहीं कहलाएंगे। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार ईमान लाए, हालत ईमान में उनकी वफात हुई, ऐसे को सहाबी कहते हैं। लिहाजा सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह की तरफ से सेलेक्टेड, इंतखाब की हुई जमात थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की मदद के लिए, अपनी दीन की इशाअत के लिए, अपनी दीन की हिफाजत के लिए, नबी की अहादीस की हिफाजत के लिए, अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम की जमात को चुना, सेलेक्ट किया, इंतखाब किया, और ऐसी जमात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगाया। मेरे भाइयों, एक सहाबी जिनके ईमान पर कभी भी शक नहीं किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी दर्जे के सहाबी हो, चाहे वो अव्वल दर्जे में ईमान लाने वाले सहाबी हो या आखिरी दर्जे में, आखिरी वक्त में ईमान लाने वाले सहाबी हो, उन सहाबी के ईमान में किसी भी तरह का न शक किया जा सकता है, न सुबह किया जा सकता है, और जिनकी ईमान में किसी भी तरह की मिलावट हरगिज नहीं हो सकती है, बल्कि ईमान में सच्चे हैं, पक्के हैं, और
जिनके ईमान की गवाही अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर दिया कि अल्लाह ताला ने ईमान उनके दिलों में रासिख कर दिया, अल्लाह ने ईमान को उनके दिलों में लिख दिया। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि सहाबा किराम ईमान के मामले में बहुत ही सख्त हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी ऐसी मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कोई शक व शुबा नहीं किया जा सकता है सहाबा के ताल्लुक से, सहाबा किराम की जमात के ताल्लुक से। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में ऐसी रासिख है कि वो अल्लाह के दुश्मन से कभी भी मोहब्बत नहीं करते हैं, कभी भी अल्लाह के दुश्मनों से मोहब्बत का हाथ नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि उनके लिए दलील के तौर पे अल्लाह ने बयान किया कि रुकावट की राह में अगर उनका बाप भी आ जाए, उनकी माँ भी आ जाए, अगर उनके औलाद भी आ जाए, उनके बच्चे भी आ जाए, उनके अजीज व अकारिब भी आ जाए, उनकी वतन भी आ जाए, उन तमाम चीज़ों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और जिन तमाम चीज़ों को सहाबा किराम ने किया, जिसको हम बारहा अपने खुतबात, अपने दर्स, अपने तकरीरों के अंदर हम सुनते हैं कि सहाबा किराम ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दूसरी बात कही है इस आयत के अंदर वो ये है कि सहाबा किराम की जमात, जो सहाबा किराम का तबका है, ये तबका जिनके ऊपर अल्लाह का ख़ास इनाम है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख़ास मदद इन तमाम लोगों को हासिल रही है। अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास नुसरत और ख़ास ताईद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इन जमात पर अल्लाह ताला ने इनको अता किया है, जिसे अल्लाह ने कहा वअय्यदहुम बिरूहिम मिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास मदद और साए इन लोगों को हासिल रहा। फिर तीसरी बात ये कही जा रही है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल से ये तमाम के तमाम सहाबा जन्नत के अंदर दाखिल होंगे अल्लाह की रिज़ा से, अल्लाह की खुशनुदी से, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और रिज़ा जन्नत के अंदर दाखिल होने के लिए शर्त है। तो अल्लाह ताला अपने फजल से दुनिया के अंदर ही इन सहाबा के लिए इस बात का ऐलान कर दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दिया कि ये सहाबा सारे के सारे जन्नत में दाखिल होंगे। मेरे भाइयों, सहाबा किराम को और सहाबा किराम की जमात को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह की लश्कर है, ये अल्लाह की लश्कर हैं और ये अल्लाह की जमात है, और जो अल्लाह की जमात हो वो जमात हमेशा कामयाब होने वाली जमात है और हमेशा वो जमात यानी दुनिया और आखिरत के अंदर सुरखरुई हासिल करने वाली जमात है। लिहाजा ये कुछ बातें सहाबा किराम की शान और उनकी फजीलत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात कही है इस आयत के अंदर। मेरे भाइयों, सहाबा किराम की जमात, जैसा कि मैंने आपके सामने बयान किया कि सबसे बेहतरीन जमात है इस रूए ज़मीन पर, लेकिन आप देखते होंगे कुछ दिनों से सोशल मीडिया को अगर आप पढ़ते हैं और जानते हैं तो आप देखते होंगे कि बाकायदा तौर पर शियाओं की फिक्र को छोड़ो, शिया तो सहाबा को गालियां देते हैं, उनकी शान में तानो तशनी करते हैं, वो तो बदअकीदा लोग हैं ही हैं, लेकिन अपने घर के रहने वाले जो अपने आप को बड़ी शोहरत याफ्ता अपने आप को कहलाने वाले, आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर आपने सुना होगा कि एक शख्स जिसने बाकायदा तौर पर सहाबा किराम के इस मौजू को लेकर के कि उन्होंने इस बात की वजाहत और इस बात पर बयान दिया, वलियाज़ु बिल्लाह, जिसको बोलते हुए एक मोमिन का रोंगटा कांप जाता है, एक मोमिन का रोंगटा खड़ा हो जाता है। उस शख्स ने, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले, उन्होंने बड़ी शोहरत हासिल की, लेकिन इस तरह की बेहुदा बातें जो सहाबा की शान में उन्होंने कही है, ऐसी बदअकीदगियों को उन्होंने तरवीज़ दिया है और लोगों के दरमियान लाने की कोशिश की है। बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम किया गया और उस प्रोग्राम का टॉपिक और मौजू क्या था? कुरान की रोशनी में मुनाफिक सहाबा किराम। अल्लाहु अकबर वलियाज़ु बिल्लाह। मुनाफिक सहाबा किराम कुरान की रोशनी में, अल्लाहु अकबर। इस टॉपिक के जरिए से सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत को दागदार किया गया, सहाबी रसूल हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत को दागदार किया गया, और इन लोगों की शान और फजीलत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ऐसी दुआएं हैं, ऐसी ऐसी तालीमात हैं, जिनके बारे में आज हम और आप, हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है कि एक सहाबी के बारे में हम ज़बान खोलें।
میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے صحابہ نے جو ایک مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اگر پوری عمر اور پوری زندگی بھی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو تم اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اور قیامت تک آنے والے انسان میں کوئی بھی انسان چاہے کتنا بھی بڑا متقی ہو، کتنا بڑا علامہ ہو، وہ صحابہ کرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ان کی مقام اور ان کے مرتبے کے لیے نبی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا بھی بہت بڑی بات اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا والسابقون الاولین من المہاجرین، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے تم سے سبقت کیا ایمان لانے میں، تم سے سبقت کیا ہجرت کرنے میں، تم سے سبقت کیا پہل کیا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سبقت کیا، ہر معاملے میں تم سے وہ سبقت کر گئے اور ہر معاملے میں اور ہر اچھائی اور ہر خیر کے معاملے کو انہوں نے تم سے پہلے کیا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ صحابہ کرام کو اگر کوئی آدمی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یا تو وہ منافق ہی ہو سکتا ہے یا وہ بے دین اور زندیقی انسان ہو سکتا ہے، ایک مومن کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ سے نفرت کرنا، بغض کرنا یہ کفر اور نفاق کی علامت ہے۔ لہذا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کہا لعنت اللہ والملائکہ، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، جہاں والوں کی لعنت ہے، اللہ کی مخلوق کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر باقاعدہ طور پر اس شخص نے جو تشیع کا یعنی شیعہ فکر رکھنے والا اس انسان نے جو اپنی شہرت تو بہت رکھتا ہے اس ملک کے اندر، اس شخص نے صحابہ کو منافق کہا، صحابہ کرام کے بارے میں اس نے یہ بات کہی، یہاں تک کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اس امت کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، جنہوں نے اس امت کو تقریباً 5000 سے زائد حدیث ہم تک پہنچایا۔ اس صحابی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بنو امیہ کے دباؤ میں آ کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آدھی سے زیادہ حدیث کو بیان ہی نہیں کیا، والعیاذ باللہ، دین کو چھپایا، حدیث کو چھپایا، والعیاذ باللہ۔ اللہ اکبر، جن صحابہ کے بارے میں اللہ نے آسمان سے گواہی دی ہے، ان صحابہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہنا، اس آدمی سے کیسے دین لیا جا سکتا ہے، ان آدمی اور اس جماعت کی کیسے پیروی کی جا سکتی ہے، اور اس جماعت کو کیسے فالو کیا جا سکتا ہے جو اس طرح کی ذہنیت رکھتا ہو کہ حضرت معاویہ کو ظالم اور خائن کہنے والے لوگ ہوں، ایسے لوگوں کی کیسی پیروی کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو کہ انسان ہونے کے ناطے سے ان صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی، جو ان سے کوتاہیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم تھا یہ تمام چیزیں، باوجود اس کے اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ کہا، یعنی ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے اور اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہ صحابہ جو دین کے لیے ہمارے پاس معیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ صحابہ جن کا ایمان، اگر تمہارا ایمان بھی ان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا تو کل کے دن تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ ان صحابہ کو اللہ نے ہمارے لیے ایک اسوہ، ایک آئیڈیل، ایک معیار اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابہ کی جماعت، تمہارے بعد والے اگر تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو وہ کامیاب ہیں۔ صحابہ کے ایمان کو، یعنی ہمارے ایمان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ایمان سے جانچا جائے گا، ان کی ہدایت کے ذریعے سے ہماری ہدایت کو جانچا جائے گا، ان کی سچائی کے ذریعے سے ہماری سچائی کو جانچا جائے گا، کل قیامت کے دن ان کی ہدایت کو ہماری ہدایت کے ذریعے سے جانچا جائے گا، ان کی امانت داری کو ہماری امانت داری کو ہے ان کی امانت داری کے ذریعے سے جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ یہ معیار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی۔ اگر ان کے ایمان کے جیسے ہمارا ایمان نہیں،
अगर उनकी अमानत के जैसी हमारी अमानत नहीं, और उनकी हिदायत के जैसी हमारी हिदायत नहीं, उनकी तौहीद के जैसी हमारी तौहीद नहीं, तो कल के दिन हम कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ, सहाबा की तरह अगर तुम्हारा ईमान है, सहाबा के नक्शे कदम पर चलने और उसकी पैरवी करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया। और आज बैठे बिठाए ये मुल्ला और ये मौलवी अपने कलम से, अपनी ज़बान से अल्लाहु अकबर, इन सहाबा की शान में इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखी कि इन सहाबी को जालिम कोई कहता है, इन सहाबी को कोई यानी बागी कहता है, इन सहाबी को कोई हुकूमत का लालची कहता है। वलियाज़ु बिल्लाह, वलियाज़ु बिल्लाह। मेरे भाइयों, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को हर तरह से कुर्बान करके अल्लाह के दीन को फैलाया, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके अल्लाह के दीन को सरबलंद किया, अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के लिए उन्होंने हर चीज़ को कुर्बान कर दिया। सहाबा जब तक थे अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल हुआ करती थी। लिहाजा सही मुस्लिम की रिवायत जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक जमात जंग कर रही होगी, एक जमात जंग कर रही होगी मुसलमानों की, और वो जंग मुसलमानों की जमात जीत नहीं पा रही होगी, वो जंग मुकम्मल नहीं हो पा रहा होगा। उस वक्त कहेगा कोई आदमी उसमें से कि तुम में से कोई सहाबी रसूल है, कोई ऐसा आदमी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हो। उस वक्त कोई एक सहाबी होंगी जो दुआ करेंगे, और जिनकी दुआ और जिनकी तवक्कुल और जिनके ईमान और अकीदे की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उस जंग में उन मुसलमानों को कामयाबी अता करेगा। फिर एक दूसरी जंग होगी जिस जंग के अंदर मुसलमान जीत नहीं रहे होंगे, कामयाब नहीं हो पा रहे होंगे। उस वक्त कहने वालों में से कोई कहेगा अरे तुम में कोई ताबई है क्या जिन्होंने सहाबी को देखा हो, जिन्होंने सहाबी के हाथ पर ईमान लाया हो, तुम में कोई ताबई है? तो कोई ताबी वहां होंगे जो बाकायदा तौर पर उनके हक में दुआ करेंगे, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए उस जमात को भी कामयाबी मिलेगी। तीसरी जंग होगी जिसके बारे में कहा जाएगा कि तुम में से कोई तबे ताबई है क्या? उस वक्त उनको कामयाबी नहीं मिल रही होगी। उस वक्त तबे ताबई जिन्होंने ताबई के ऊपर ईमान लाया, ताबई ने सहाबी के ऊपर ईमान लाया, और सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाया। इन जमानों को जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन जमाना कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा, ताबई और तबे ताबई, वो तबे ताबई जब दुआ करेंगे तो उनके हक में दुआ करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको कामयाबी अता करेगा। तो ये सहाबा की जमात, ये ताबई की जमात, ये बाइसे खैर ही खैर इस रुए जमीन पर जब तक थे वो थे। ऐसी जमात के ताल्लुक से अल्लाह अकबर, अपनी जबान से ऐसी वैसी बातें कहना। मेरे भाइयों, ये फिक्र और ये सोच सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं, अपने मफाद और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। ये उन लोगों की ही सोच है, वरना जिसका ईमान रासिख है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए शरीयत के मुताबिक उनका ईमान है, सहाबा की ज़िंदगियों पे वो कभी कीचड़ नहीं उछालते, सहाबा के ऊपर उंगली नहीं उठाते, और सहाबा की शान में कभी गुस्ताखी करने की वो कोशिश नहीं करते। तो लिहाजा इन हकीकतों से मेरे भाइयों आगाह होना ज़रूरी है, क्योंकि हम किससे दीन ले रहे हैं, हम किसकी पैरवी कर रहे हैं, हम किस जमात के पीछे चल रहे हैं, इन तमाम हकीकतों से अगर आगाह नहीं होंगे तो मेरे भाइयों आपका ईमान और अकीदा भी खो जाएगा, आपके हाथ से चला जाएगा, आपको महसूस तक नहीं होगा इस बात का। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम यही दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन सहाबा किराम की जो जमात है, उन जमात की जिस तरह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त और एहतराम करने का और उनसे मोहब्बत करने का हमें हुक्म दिया है, वैसे उस तरीक़े को अपना करके हमें उनसे मोहब्बत करने के अल्लाह तौफीक नसीब फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने सहाबा किराम की शान और उसकी अज़मत के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मोहब्बत करने को ईमान का हिस्सा करार दिया। लिहाजा किसी भी सहाबी, चाहे अदना से अदना सहाबी क्यों ना हो, किसी भी सहाबी के ऊपर उंगली उठाना ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीज़ों के बारे में उनकी शान में जब गवाही दी है, तो हम और आप कौन होते हैं उनके हक़ में कोई गलत बात कहने का? हक़
हक़ कहाँ से हम रखते हैं। हम अपने औकात को देखें, हम अपनी हैसियत को हम देखें कि हम किस पोजीशन में हैं, हमारी इबादत की हालत क्या है, हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम कहाँ तक और किस हद तक हम नाफिज कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो इन तमाम बातों का खुलासा कलाम ये है कि इससे पहले जो मेरे खुतबात हुए थे और आज जो है, इन तमाम का खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह के दीन को हम वैसे ही अपनाएंगे जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया। सहाबा कराम ने जिस तरह से ईमान व अक़ीदे को अपनाया था, अल्लाह के दीन को हम अल्लाह की ज़मीन में पहले नाफिज करेंगे। पहले हुकूमत हासिल नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह के दीन को हम नाफिज जब करेंगे और दीन पर मुकम्मल तौर पर जब हम दीनदार बन जाएंगे, तो ये हुकूमत, ये सियासत, ये क़ियादत अल्लाह ताला खुद ब खुद हमें अता करेगा, जो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। जिन लोगों की सोच है कि सिर्फ हुकूमत कायम हो जाने से मसाइल हल हो जाते हैं, मेरे भाइयों ऐसे बेशुमार मिसाल आपके सामने है। जिससे पहले खुतबे जुमा में मैंने आपके सामने मिसाल दिया था कि पाकिस्तान की मिसाल आप ले लें, इस्लामी हुकूमत के नाम पर वहाँ पर कायम किया गया, लेकिन कितनी इस्लामी तालीमात को आज नाफिज किया जा रहा, बताएं आप। आपने कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि वहाँ पर वलियाज़ुबिल्लाह एक गैंग रेप हुआ उस मुल्क के अंदर। क्या वहाँ पर उनके पास अभी तक कानून नहीं है, इस तरह की इस्लामी कानून कि इस तरह की हरकत करने वाले को सज़ा फांसी की दी जाए या क्या जी? वहाँ की पार्लियामेंट में बहस चल रहा कि इस कानून को पास किया जाए या ना किया जाए। मेरे भाइयों, अब बताएं कि क्या इस्लामी सिर्फ हुकूमत कायम हो जाने से क्या इस्लाम के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? पहले दीन को कायम करें, जिस तरह से सहाबा ने मेहनत की, जिस तरह से सलफ़ सालिहीन ने किया, जो मनहज-ए-सलफ़ है, उन तमाम चीज़ों को अपनाने के बाद ही हम अल्लाह के बंदों के ईमान व अक़ीदे को दुरुस्त करने के बाद अल्लाह जब हमसे राज़ी होगा, ये चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खुद ब खुद अता करेगा। मेरे भाइयों, मैं आज बहुत खुशी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज साउथ कर्नाटका हो, जिसमें सलफ़ी मूवमेंट और सलफ़ियत और अहले हदीस इन लोगों ने जो काम किया 20 साल 25 साल, इस सलफ़ी मूवमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने मिलकर के कि आज जिसकी बुनियाद पर आज कसीर तादाद में लोग हक बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और इन मुद्दत के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मस्जिदें बनी हैं, काफ़ी मदरसे बने हैं, जिसकी तरफ आप देख रहे हैं लोग हक की तरफ आ रहे हैं कसरत से। और इस मनहज को लेकर के पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ भी काम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले भी गए, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी कोशिशों की वजह से आज लोग कसरत से हक की तरफ आ रहे हैं, हक बात को समझ रहे हैं, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आज इसी मनहज को लेकर के तमाम जमात काम करे और अल्लाह के दीन को कायम करने की कोशिश करे। हर तरह के समझौते और दुनिया के मफाद और फ़ायदे से अपने आप को दूर रख करके अल्लाह के दीन को उसी तरह से नाफिज करने की कोशिश करे जैसे कि सहाबा ने नाफिज किया और जैसे कि बाद के लोगों ने नाफिज किया। इस काम को करने की कोशिश करें और हर तरह की ईमान व अक़ीदे में मिलावट, एडजस्टिंग, समझौता, सुलह, जो ईमान व अक़ीदे के लिए ख़तरा हो, इन तमाम चीज़ों से बच करके काम करने की कोशिश करें। जो शिर्क है शिर्क कहें, जो बातिल है उसको बातिल कहने की कोशिश करें, जो बिदात है उसको बिदात कहने की कोशिश करें, और जो हक है उसको हक कहने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से सिर्फ डरें और अल्लाह के दीन को अपना करके कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें, तभी जा करके हमारी कामयाबी हो सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम यही दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन जो बातें भी कही गई है उन बातों पर अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमा, और इस तरह के फितने और नए नए फसादात जो उम्मत के अंदर